آج کے جو سرمن کا ٹاپک ہے وہ یہی ہے، ستارہ راہ دکھاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور انگلش میں اس کو ہم اس طرح سے کہیں گے، اسٹار لیڈس ٹو جیزس۔ ستارہ راہ دکھاتا ہے اور کہاں پہنچاتا ہے؟ جیزس کے پاس۔ پریز دا لارڈ۔ سو آج ہم اس سٹوری میں جانے سے پہلے، کلام کے اس حصہ میں جانے سے پہلے بچپن کی اس سٹوری کو یاد کریں گے جو ہم اپنی نانیوں سے، دادیوں سے سنا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ تھا، ایک شہزادہ تھا، اور جب وہ جنگل میں کھو گیا تو اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں جانا ہے، تو اچانک اس نے ایک جھونپڑی دیکھی جس میں ایک لائٹ تھی اور ایک بزرگ تھا، اور وہ بزرگ کے پاس وہاں جاتا ہے اور وہ شہزادہ بتاتا ہے کہ اس جنگل میں میں راستہ بھول گیا ہوں اور مجھے پتہ نہیں کہ کہاں جانا ہے۔ تو جو بزرگ تھے وہ ایک طرح سے ڈیوائن ہیلپر بن جاتا ہے اس کے لیے، اور وہ اس کو اپنی ایک تھیلے میں سے ایک بال نکال کے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بیٹا اس بال کو پکڑو، جب تم اس بال کو زمین پر رکھو گے تو یہ شائن کرنے لگ جائے گی، اور جیسے جیسے یہ آگے چلتی جائے گی تو یہ تمہیں راہ دکھائے گا، اور اس طرح سے تم اس جنگل میں سے، اس بال کے راستے میں سے نکل جاؤ گے، یعنی تمہاری مشکلیں آسان ہو جائے گی، اور یہ بال جو میجک بال ہے یہ تمہیں راستہ دکھائے گا اور تم یہاں سے باہر چلے جاؤ گے۔ اس وقت وہ جو میجک بال ہوتی تھی، وہ جو شائننگ بال ہوتی تھی، وہ بادشاہ شہزادہ گھوڑے پہ ہوتا تھا اور بال آہستہ آہستہ آگے جا رہی ہوتی تھی جنگل میں سے، اور وہ اسے راہ دکھاتی جا رہی تھی، اور اس طرح وہ شہزادہ جو ہوتا تھا بھٹکا ہوتا تھا جنگل میں، وہ راستہ اسے مل جاتا تھا اور وہ جنگل سے باخیریت و عافیت باہر نکل جاتا تھا۔ سو آج جو ہم سٹوری دیکھنے جا رہے ہیں بائبل میں سے، یہ تو وہ دنیاوی سٹوریز تھیں جو ہم بچپن میں سنتے تھے، آج جو ہم سٹوری دیکھنے جا رہے ہیں اس میں ہم ایک ستارے کو دیکھتے ہیں جو راہ دکھا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ راہ دکھانے کے لیے جو چیزیں یوز ہوتی ہیں ہم ان کو نیویگیٹر کہتے ہیں، ٹریکر بھی بولتے ہیں۔ آج جدید دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں میں بھی جب کہیں ٹریول کرنا ہوتا ہے تو نیویگیٹر لگا لیا جاتا ہے، چلو جی فلاں جگہ جانا ہے، ہمیں راستہ نہیں پتا، کتنی سہولت پیدا ہو گئی ہے۔ تو نیویگیٹر آپ کو راستہ دکھاتا جاتا ہے، میپ آ جاتا ہے، گوگل میپ آج ستارہ بنا ہوا ہے، تو وہ ہمیں راستہ دکھاتا جاتا ہے، گاڑی میں میپ لگا لیتے ہیں اور ہم کریکٹ اس پلیس پر، اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ہمیں جانا ہوتا ہے۔ سو آج کی دنیا میں، آج کے اس لیٹسٹ جدید ٹیکنالوجی کے زمانہ میں ہم نیویگیٹر کو استعمال کرتے ہیں، جو کہ گوگل میپ بھی جس کو کہا جاتا ہے، ٹریکر بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن میری بہنوں، آج سے 2000 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں پیچھے، قدیم زمانہ ہے، اینشنٹ پیریڈ میں چلے جائیں، پرانے زمانے میں چلے جائیں، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ستارہ ہمیں وہاں نظر آتا ہے۔ وہ ہر وقت ستارہ نظر نہیں آتا تھا، وہ خاص موقع تھا جب وہ ستارہ نظر آیا، اور جس نے راہ دکھائی کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جنہوں نے تحقیق کی، جنہوں نے ریسرچ کی کہ یہ آج جو آسمان پہ ستارہ ابھرا ہے یہ بڑا ہی ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ وہ یعنی سوچتے رہتے تھے اس بارے میں، وہ کلام سے واقفیت رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ کچھ ہوگا آئندہ زمانوں میں، کچھ ہوگا، اس طرح کا کوئی نشان نظر آئے گا آسمانوں میں، اور وہ تحقیق کرتے رہتے تھے۔ ہاللیلویا۔ تو بائبل میں سے ہم اس سٹوری کو پڑھیں گے۔ اپنی بہن سسٹر زکیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، خدا کی خادمہ، تو میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میری بہن آج کی اس تلاوت میں ہماری مدد کریں۔ جی ویلکم سسٹر۔ تھینک یو سسٹر جی، تھینک یو۔ ہاں جی، خداوند یسوع مسیح کے مبارک اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کی شکر گزار ہوں جس نے موقع دیا کہ خداوند کے کلام کو پڑھوں اور ہم سب برکت پائیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ سو آئیے خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں۔ مقدس متی کی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے 12 آیت تک۔ دا گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 2 ورس 1 till 12۔ اٹ از ریٹن ان دا ورڈ آف گاڈ۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں
और फक्कियों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम, यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। और वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को और उसकी माँ मरियम के पास देखा, और उसके आगे गिरकर सिजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना, लुबान और मोर उनको नजर किया, और हेरोदिस के पास फिर न जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जकिया, खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत। सो मेरी बहनों, हमने कई दफा इस हवाले को पढ़ा है, और हम देखते हैं कि इस हवाले में आज हम दो तरह के लोगों से मिलने जा रहे हैं। हर एक स्टोरी में हीरो हीरोइन भी होते हैं, विलन भी होता है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो फेमस होते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो बैक पे होते हैं, जिनको एक्स्ट्रास भी बोलते हैं। इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं वो हम देखते हैं मजूसियों का कैरेक्टर हम देखते हैं, फिर इसके बाद हम देखते हैं और जीसस को हम देखते हैं इसमें, और मरियम को हम देखते हैं, और सितारा देखते हैं, और किंग हेरोदिस बादशाह। ये वो कैरेक्टर हैं जो इस स्टोरी में मेन है। और एक और हिस्सा है इसमें, वो है काहिनों का भी, काहिन भी हैं और फरीसी भी इसमें मौजूद हैं। सो ये वो कैरेक्टर्स हैं जो आज इस स्टोरी में हम देखेंगे, और इनकी जिंदगियों पर गौर करेंगे, इनके एटीट्यूड को देखेंगे, और हम देखेंगे कि किस हिस्से में किस तरह से इन्होंने अपना कैरेक्टर अदा किया। मजूसियों से मिलते हैं सबसे पहले। कई मजूसी, अभी हमने पढ़ा है, बहन ने तलावत की है कि कई मजूसी पूरब से चले। कहाँ से? पूरब से, मशरिक, ईस्ट जिसको बोलते हैं, मशरिक से चले, और उन्होंने क्या देखा? एक सितारा देखा। ये ग्रुप जो था ये बाखबर लोगों का है। दो तरह के ग्रुप हैं, एक बाखबर लोग हैं और एक बेखबर लोग हैं, जिन्हें हम देखेंगे इस स्टोरी में। बाखबर वो लोग हैं जो तहकीक में थे, जो रिसर्च में थे, जो कलाम के साथ, शरीयत के साथ जुड़े हुए थे, तौरेत के साथ जुड़े हुए थे, जिसमें प्रोफेसीज हुई थी, जिसमें पेशन गोइयां हुई थी कि कोई बादशाह आएगा। ये वो लोग थे जो बाखबर थे। हालेलुया। क्योंकि जब मेरी बहनों, ये गौर तलब बात है कि जब सितारा नजर आता है तो कैन यू इमेजिन कि सितारा सिर्फ पूरब में नजर आया होगा? हम अभी भी अपने जब देखते हैं कि लाइट चली जाए, या कुछ हम अपने सहन में खड़े होके या बाहर स्ट्रीट में खड़े होके कभी आसमान की तरफ देखें तो आसमान पर बहुत से सितारे नजर आते हैं, और वो सबको नजर आते हैं। जो भी अपनी जगह पे खड़ा उसे सितारे नजर आ रहे होते हैं। सूरज, चांद, सितारे, ये आसमानी चीजें जो हैं ये हम सबको नजर आती हैं। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि मशरिक में सितारा नजर आया, और ये एक खास सितारा था, और ये उन लोगों को नजर आया जो बाखबर थे, जिनको पता था कि कभी ना कभी कोई बादशाह आएगा जिसके बारे में हम पेशन गोइयां पढ़ रहे हैं। ये होगा, वो नबी दुनिया में आएगा। तो वो पढ़ते रहते थे और रिसर्च करते रहते थे और गौर करते रहते थे। और ये जो मजूसी हैं, मजूसी जो माहिर फल्कियात थे, माहिर फल्कियात वो लोग जो सितारों का इल्म जानते हैं, आसमान के बारे में जानते हैं, चांद, सितारे, सूरज, इनका इल्म रखते हैं। ये वो लोग थे। आज उन्होंने एक अजीब किस्म का सितारा देखा जो कि आसमान पे बहुत शाइन कर रहा होगा, डिफरेंट होगा दूसरों से लुक में। और जब हम कभी डेकोरेशन करते हैं अपने घरों में तो हम देखते हैं जो वो सितारा हम बनाते हैं वो थोड़ा टेल वाला करके थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं। ऐसे ही होता है ना, स्कूल्स में भी जब डेकोरेशन होती है, चर्चिज में डेकोरेशन होती है, घरों में, तो हम ये ख्याल रखते हैं वो थोड़ा सितारा डिफरेंट हम कई दफा बनाते हैं। लेकिन ये है कि मे बी हमने तो उस वक्त नहीं देखा, लेकिन ये एक इमेजिनेशन है। वो ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट सितारा था, वो एक पेशन गोई करने वाला सितारा था। वो बहुत ब्राइट होगा, शाइनिंग होगा, चमक रहा होगा, जो इन मजूसियों ने देखा कि ये कोई डिफरेंट सितारा जो हमें नजर आ रहा है।
तो फिर हम देखते हैं कि इसी सितारे के पीछे चल पड़े 3 मजूसी। हम स्टोरीज जब बनाते हैं, जब हम ये प्ले करते हैं, इस पे ड्रामा अरेंज करते हैं क्रिसमस का, 3 हम बनाते हैं। 3 जो मजूसी बनाते हैं, वॉइस मैन उनको कहते हैं, किंग्स भी कई उनको कहते हैं कि 3 किंग थे जो आए थे जीसस को देखने। 3 वॉइस मैन थे, अक्लमंद लोग, ज़हीन लोग जो बादशाह को देखने आए। तो हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है कई मजूसी। अभी हमने तलावत की कलाम में क्या लिखा? कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में आए, चलते चलते ट्रैवल करते हुए। क्या वो पैदल आए होंगे? हरगिज नहीं, बहुत लंबा सफर था जो बताया गया है कि पूरब से यरूशलेम आए। सिमतें बताई गई हैं, मशरिक से चले वो। उन्होंने यकीनन ऊंट लिए होंगे, अपना साजो सामान उन पर लादा होगा, और वो इतने अक्लमंद लोग थे, इतने रिच लोग थे जो वो सोना और सब कुछ साथ लेके चले वहां से। और उनके साथ उनके नौकर चाकर भी होंगे, और मजूसी भी थे साथ, कई मजूसी। तो ये एक बड़ा काफिला था जो जीसस को देखने के लिए उस सितारे के पीछे पीछे चला कि ये हमें कहाँ ले जा रहा है, कौन सा बादशाह है ये जिसका सितारा हमें नजर आ रहा है और जिसकी पेशन गोइयां हम पढ़ रहे हैं, हम उसे देखने चलें। तो ये वो लोग थे, बाखबर लोग थे, मजूसी थे, वाइज मैन थे, किंग्स थे जो उस सितारे के पीछे चले। और वो सारा काफिला चलता चलता कहाँ पहुंचा? यरूशलेम में पहुंचा। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं अनदर ग्रुप, लोगों का एक दूसरा ग्रुप देखते हैं जो कि बेखबर लोग थे। हालेलुया। बेखबर लोग जिन्हें पता ही नहीं है कि कोई सितारा कहाँ से लोग चल के यरूशलेम में आ गए हैं, और उन्हें कोई खबर नहीं है कि उनके बीच में कितना बड़ा दुनिया का निजात दहिंदा आ चुका है। वो बेखबर लोग थे, उन्हें बिल्कुल पता नहीं था इस बात का। जब ये ग्रोह पहुंचा वहां पर, तो इन्होंने अक्लमंद, जो कि वाइस मैन हम इनको कहते हैं, अक्लमंद लोग थे, इन्होंने सोचा बजाय कि हम इधर उधर लोगों से पूछें, बादशाह के पास चलते हैं, क्योंकि बादशाह ही को हम ढूंढने आए हैं। तो जो यहाँ का बादशाह होगा वो हमें सही राह बताएगा, उसको तो एटलीस्ट खबर होगी अपने इलाके की कि क्या हुआ है यहाँ पर, कहाँ वो बादशाह पैदा हुआ है, जो नन्ना बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है। तो वो बादशाह के पास पहुंचे। तो बादशाह का रिएक्शन यहाँ हम देखते हैं। बादशाह को जब ये खबर मिली कि मजूसी आए हैं आपसे मिलने के लिए, वो किसी बादशाह की तलाश में है, तो वो बादशाह से मिले, और बादशाह और उसके जो लोग थे, लिखा है वो इस बात को सुन के घबरा गए कि ये किसी बादशाह को तलाश करते हुए आए हैं। ये वो ग्रुप है, पहला बाखबर था और खुश था कि वो तलाश करते हुए आ रहे हैं जीसस को। दूसरा ग्रुप बेखबर और घबराए हुए लोग, जब पता चला कि बादशाह आ गया है कोई, तो वो घबरा गए। किंग हेरोदिस बादशाह, वो घबरा गया सुन के कि बादशाह तो मैं हूँ, और कौन सा बादशाह पैदा हो गया मेरी सल्तनत में। ये वो बादशाह था जो सिर्फ खास लोगों को देखता था, अपने अपने नजदीकी लोगों पर उसकी नजर थी। उसे पता नहीं था कि किसी दूर दराज इलाके में, मेरी ही किंगडम में कोई ये बादशाह पैदा हो चुका है। ये बेखबर लोग थे। इवन के उसने फिर जब ये बात सुनी तो उसने बुलाया, किनको बुलाया? काहिनों को। हालेलुया। काहिनों को जो हैकल के साथ हर वक्त जुड़े रहते थे, फकीयों को बुलाया। और क्या काहिन भी उस वक्त बाखबर थे? ये क्वेश्चन है। अगर ये लोग जो शरीयत पढ़ने वाले थे, आम लोग थे, सितारों का नॉलेज रखने वाले, और उनका एक अदर फील्ड थी, लेकिन वो शरीयत से भी वाकिफ थे कि कोई नबी आने वाला है, कोई बादशाह आने वाला है, वो बाखबर थे। जो काहिन थे वो बेखबर क्यों थे? क्या उन्हें नहीं पता होगा? क्या वो शरीयत उस वक्त नहीं पढ़ते होंगे, तौरेत को नहीं पढ़ते होंगे? या आज भी हमारी बहनें जब डेली पढ़ती हैं कि ये पेशन गोई हुई थी आज से 2000 साल पहले, ये पेशन गोई हुई थी कि जीसस आने वाला है, ये पेशन गोई हुई थी कि बादशाहों का बादशाह पैदा होने वाला है, तो क्या उस वक्त सरदार काहिन जो थे, वहां पर जो काहिन थे, उन्होंने कलाम नहीं पढ़ा होगा? वो बेखबर थे। कई दफा खादमीन जो होते हैं अपनी रियल ड्यूटी को भूल जाते हैं। हम सिर्फ दुनियादारी को, लोगों को, बादशाह को उस वक्त खुश करते रहते हैं, उन्हीं के लिए दुआएं करके, प्रेज करके। जो रियल ड्यूटी होती है, कई दफा खादमीन भी उसको भूल जाते हैं। वो कुछ अच्छी अच्छी बातें, खुश करने वाली लोगों को बातें बताते हैं, जो रियलिटी होती है वो नहीं बताते। और यहाँ भी ये जो काहिन थे, हो सकता है ये बादशाह से डरते हुए ये बताते ही ना हो कि कोई बादशाह और भी पैदा हो, क्योंकि किंग हेरोड जाहिर जैसा कि वो किंग था, अभी भी यहाँ हम देखते हैं वो भर गया गुस्से से और घबरा गया कि ये कौन सा बादशाह हो सकता है। वो डरते इसीलिए ना उसको बताते हूँ कि ये इस तरह पेशन गोइयां हैं कि कोई बादशाह आने वाला है। तो वो बेखबर थे, उन्होंने कोई बादशाह को बात नहीं बताई। लेकिन अब जब बादशाह ने उन्हें बुलाया अपने महल में और तहकीक की कि ये वाकया इस तरह है जो ये बता रहे हैं, आके पूछ रहे हैं, तो फिर मेरी बहनों लिखा है, उन्होंने उससे कहा
कि अब वो बताने लगे पढ़ के कलाम में से, क्या उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है। देखिए अब उन्होंने पढ़ के बताया है, इट मींस कलाम मौजूद था उनके पास, लेकिन बेखबर लोग थे, ध्यान से पढ़ने वाले नहीं थे कि तवज्जो देते, ध्यान से पढ़ते कि कलाम में क्या लिखा हुआ है, आने वाले वक्त में क्या लिखा हुआ है। अभी भी हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ प्रेजेंट को पढ़ते रहते हैं, उन्हें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हम उन बातों की फिक्र नहीं करते। ये भी वही लोग थे जो प्रेजेंट में खुश थे, आने वाले वक्त का नहीं उन्हें पता था कि क्या होने होगा। तो यहाँ फिर उन्होंने पढ़ के बताया कलाम में से कि यस बादशाह लिखा हुआ है, नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्लाबानी करेगा। हालेलुया। सो उन्होंने पढ़ के बताया फिर कलाम में से कि ये लिखा हुआ है। इट मीन्स कि वो ध्यान से नहीं पढ़ते थे, तो अब उन्होंने पढ़ा है और बादशाह को भी बाखबर किया है। प्रेज द लॉर्ड। और इसमें मेरी बहनों जब उसने ये खबर सुनी तो बादशाह घबरा गया। ये लोग थे जो घबरा गए थे कि एक और बादशाह आ गया है, अब क्या होगा, मेरी सल्तनत का क्या होगा। उसे अपनी सल्तनत की पड़ गई फिक्र। सो हम देखते हैं कि इसी एक आयत में जो छोटा इलाका था बैतलहम, ए बैतलहम यहूदा के इलाके, क्या लिखा है, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं। किस पर नजर की खुदा ने? छोटे इलाके पर। छोटे इलाके पर ये खुदा की खूबी है, ये खुदा की खासियत है कि वो हमेशा छोटी जगहों को चुनता है, छोटे इलाकों को, छोटे लोगों को, छोटे कबीलों को, जो वो जिनको हकीर जाना जाता है, जिनको कुछ नहीं जाना जाता है। जहाँ ये इलाका जिसे बादशाह को पता ही नहीं कि ये भी मेरी सल्तनत का हिस्सा है, छोटा विलेज बैतलहम। हालेलुया। और खुदा उनको चुनता है जिन्हें दुनिया कुछ नहीं समझती, जो इग्नोर्ड एरियाज होते हैं, ऐसे इलाके जिन्हें पता ही नहीं, इवन के हुक्मरानों को भी नहीं पता कि ये भी इलाका हमारे एरिया में है। तो वो आके उनसे बताया जाता है कि कलाम में लिखा है यही है वो इलाका जहाँ उसने आना है नबी ने। सो इसी तरह मेरा खुदा छोटे लोगों को चुनता है। और फिर आगे चल के जब हम देखते हैं जीसस को पैदा होने के लिए, जीसस की बर्थ के लिए भी किस खानदान को चुना गया, किस शख्स को चुना गया, जो एक आम शख्स था, यूसुफ बढ़ई था। लिखा है कि जीसस बढ़ई के घराने में पैदा हुआ और जीसस भी बढ़ई था। आम शख्स को चुना जीसस की बर्थ के लिए। वो खास लोगों को नहीं चुनता कि खास लोग को चुने तो वो लोग कहें अपनी बढ़ाई, अपने ऊपर फख्र करें कि देखो मैं बड़ा अमीर हूँ, मैं बड़ा रिच हूँ, तो इसलिए खुदा ने मुझे चुना है अपनी खिदमत के लिए। नहीं, वो आम लोगों को, बढ़ई को चुना कि उसके साथ माँ मरियम की शादी हो और फिर उनकी मंगनी हुई और उनके घर में जीसस बॉर्न हुए, जीसस पैदा हुए। हालेलुया। ये इलाका जो सबसे छोटा था, छोटा विलेज बैतलहम, जहाँ जीसस ने आंख खोली, जन्म लिया। प्रेज द लॉर्ड। सो जीसस छोटी चीजों को चुन के इकबालमंद कर देता है, उन्हें मशहूर कर देता है, उन्हें फेमस कर देता है। जैसे आज ये इलाका फेमस हो गया बैतलहम, जहाँ पर मजूसी आ रहे हैं, किंग्स आ रहे हैं, जहाँ पर वॉइस मैन आ रहे हैं देखने के लिए, खुशखबरी को सुनने के लिए, देखने के लिए उस बादशाह को। प्रेज द लॉर्ड। सो इस इलाके पर फजल हुआ। हालेलुया। आज मेरा खुदा, आपका खुदा छोटे इलाकों पर, छोटे लोगों पर जो अपने आप को हकीर समझते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं, हम पर फजल करना चाहता है, हमें चुनना चाहता है, बशर्ता कि हम बाखबर रहें, जुड़े रहें कलाम के साथ। फिर फजल होता है, फिर इकबालमंदी आती है, फिर आप अपने प्लान्स को, खुदा के प्लान्स को समझ पाते हैं कि उसका प्लान क्या है आपकी जिंदगी में। आगे चलते हैं मेरी बहनों। हम देखते हैं यहाँ जो गौरतलब बातें हैं वो ये है कि बादशाह को जब ये पता चल गया तो बादशाह फिर चुप करके नहीं बैठा। पहले जो चुप था, खामोश था, बेखबर था, बाखबर हो गया। उसने लिखा है कि मजूसियों को चुपके से, पहले तो वो चले गए होंगे कि बादशाह ने कहा होगा कि नहीं मुझे तो खबर नहीं, चलो मैं भी पता करता हूँ, तुम भी पता करो। तो फिर चुपके से दोबारा उनको बुलाया। लिखा है कि चुपके से उन्हें बुलाया उन मजूसियों को और तहकीक की कि वो सितारा कब नजर आया था, कहाँ नजर आया था, कैसा सितारा था। अब वो अलर्ट हो गया था। हालेलुया। बाखबर हो गया था, अलर्ट हो गया था। अब उसने जानना शुरू किया कि वाकई ऐसा ही है, ये मेरी सल्तनत तो नहीं थी खत्म होने वाली, खतरे में पड़ गई। वो कौन सा ऐसा बादशाह पैदा हो गया जिसका मुझे इल्म नहीं। फिर उसने इनसे कहा कि अच्छा तुम भी जाओ, अपने तौर पे तहकीक करो, ढूंढो जाके, और जब वो तुम्हें मिल जाए बच्चा, वो बादशाह, तो मुझे भी बताना ताकि मैं भी जाकर उसको सिजदा करूं। क्योंकि इन्होंने बोला, मजूसियों ने, वाइस मैन ने, कि हम आए हैं कि हम उसे सिजदा करें। तो बादशाह ने भी अब उन्हें ट्रैप करने के लिए साजिश रचाई। तो मेरी बहनों, क्या वो सिजदा करना चाहता था कि उसका कोई और प्लान था?
क्योंकि हम शुरू से ही देख रहे हैं कि वो घबरा गया बादशाह को सुन के, वो सिजदा नहीं करना चाहता था। उसका प्लान बी था जो कि कत्ल करवाने का था कि अगर ये मुझे पता चल जाता है तो मैं इस बादशाह को मार दूंगा, ये ना हो कि इन फ्यूचर ये मेरे लिए खतरा बन जाए। तो उसका तो ये प्लान था। सो लिखा है कि वो जो मजूसी थे वो चल पड़े वहां से। अब एक और मैं आपको बात बताऊं, मैं जो कलाम पढ़ रही थी तो खुदा ने मेरे दिल में पाक ने ये बात डाली कि अब वो कितना दूर से सफर करके आए थे। वो ये भी सोच सकते थे कि हम इतनी दूर से आए हैं, चलो अब हमने बादशाह के कान में ये बात डाल दी है कि बादशाह एक और बादशाह पैदा हो गया। अब ये इसका हेडेक है, ये तलाश करेगा, खुद ही भेजेगा अपने फौजियों को और सबको कि जाओ जाके ढूंढो कहाँ बच्चा पैदा हुआ। चलो हमारी जो मुश्किल है, जो हमारा सफर है वो कम हो जाएगा, हम इसके पास स्टे करते हैं और हम यहाँ रेस्ट करते हैं। अब बादशाह का काम है, ये खुद ही ढूंढ लेगा जाके और फिर हम भी बादशाह के साथ जाके सिजदा करेंगे। क्या उन्होंने इस तरह सोचा? हरगिज नहीं, उन्होंने बिल्कुल इस बात को नहीं सोचा। वो थके नहीं। जब हम खुदा को ढूंढ रहे होते हैं तो हम थकते नहीं। हालेलुया। जब हमारे अंदर एक पैशन होता है कि मैंने जीसस तक पहुंचना है, फिर हम थकते नहीं, कि वो चलते रहे। बादशाह को खुदा हाफिज करके बोले कि अब हम जा रहे हैं, ठीक है, हम ढूंढते हैं तो फिर आपको भी बताएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो ये था उनके जज्बा उनका कि हमने पहुंचना है उस जगह पर। और जैसे ही वो वहां से निकले, सितारा फिर उनके आगे आगे, वो ही स्टार जो लीडिंग स्टार था, गाइडिंग स्टार था, उनके आगे आगे चला और वो उस जगह पर जाकर ठहर गया जहां पर वो बच्चा था। प्रेज द लॉर्ड। आखिर वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए और लिखा है जब वो अंदर गए तो उन्होंने क्या देखा? बच्चे को, जीसस, बेबी जीसस को देखा अपनी माँ मरियम के पास। प्रेज द लॉर्ड। और कितने ज्यादा वो खुश होंगे कि वो इतना लंबा सफर करके आखिर को हम उस जगह पहुंच गए, हमने ढूंढ लिया उस बादशाह को जो बादशाहों का बादशाह है, जिसके लिए हम पढ़ते होते थे, प्रोफेसीज हम देखा करते थे, कलाम में हम पढ़ा करते थे कि पेशन गोइयां के कोई बादशाह आएगा। आज हम कितने लकी हैं कि हम उस जगह पे पहुंच गए हैं, उस बादशाह के पास। वो कितने खुश हुए होंगे जब उन्होंने ढूंढ लिया, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए और बच्चे को और माँ को खुशी से देखा। और कैसी जगह थी। अब यहाँ भी हम देखते हैं कि बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ है और वो हैरान हुए होंगे देख के कि कैसी जगह पे बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ है। कैसी जगह थी वो? जानवरों को बांधने की जगह, गंदी जगह थी। और जाहिर है एक तरफ पे जानवर होंगे, एक तरफ वो जिसको चरनी हम बोलते हैं, पंजाबी में उसे खुरली कहते हैं। जो मेरी बहनें जिन्होंने विलेज देखा है, जो मवेशियों का एक्सपीरियंस रखती हैं, जिन्होंने कभी देखा होगा, उनको चारा डालने के लिए खुरली को इस्तेमाल करते थे, वहाँ चारा उनका डालते थे और उसको चरनी बोला गया, जिसको साफ सुथ करके उसमें जीसस को रखा हुआ था। यहाँ भी देखें, बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ है, निजात दहिंदा पैदा हुआ है एक आम सी जगह पर। हालेलुया। क्योंकि उन्हें जगह ही नहीं मिली जहां उन्होंने जाना था, लेकिन वो यहाँ पे ठहर गए एक आम सी जगह पर और यही जीसस की बर्थ हुई। और जीसस कहाँ पैदा हुए? आम जगह पर, आम जगह में, आम घर में आए। आज भी वो आम लोगों की जिंदगी में आता है, आम लोगों के दिलों में जन्म लेता है जीसस। जब आम लोग अपने आप को खुदा के लिए पेश करते हैं, वो खास जगहों पे नहीं जाता, वो आम छोटी जगहों पर आता है और उन लोगों को ब्लेस करता है जो छोटे होते हैं, जो छोटी जगह होती हैं। तो फिर वो हैरान भी हुए होंगे यकीनन, बट क्योंकि वो इतनी दूर से आए थे, लिखा है उन्होंने खोल दिए अपने खजानों वाले डिब्बे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ जो सीखने की बात है, जो बादशाह आए थे, जो वाइज मैन आए थे, जो मजूसी आए थे, उन्होंने क्या किया? डिब्बे खोल दिए अपने, खाली हाथ नहीं आए मेरी बहनों। नहीं तो वो कहते कि ये बादशाहों का बादशाह है, इसको बहुत बड़ी इसकी सल्तनत मिल जानी है, इसको हम अपना सोना और ये चीजें क्यों वहां पर जाके दें उसको। तो वो तो सिर्फ देख लेना ही काफी है कि वाकई ये पता नहीं हम इतनी दूर जाएंगे, पता नहीं ये सच भी होगा कि नहीं भी होगा। शक नहीं किया उन्होंने, अपनी तैयारी के साथ आए। बादशाह से मिलने जा रहे हैं तो जो गिफ्ट्स बादशाह के लिए होने चाहिए वो लेके आए अपने साथ। प्रेज द लॉर्ड। कुछ चीजें जो बादशाहों को पेश की जाती हैं, कुछ चीजें जो रूह ने उन्हें गाइड किया, वो भी वो साथ लेके आए। कौन से गिफ्ट थे? सोना, मुर, लोबान। सोना पेश किया जाता है बादशाहों को कि ये बादशाह होगा। मुर पेश किया जाता है कि ये मौत तक पहुंचेगा, इसने मौत मरना है, जान देगा, अपनी जान देगा, ली नहीं जाएगी, जान देगा। हालेलुया। ये बात आप गौर से इसको देखें कि उसकी जान निकाली नहीं जाएगी, वो जान खुद देगा। आज अगर मुझे आपको कोई कहे कि आप अपनी जान देंगे तो क्या हम कहेंगे? हम कहेंगे नहीं नहीं, मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, मेरे तो बच्चे अभी छोटे हैं।
तो ये जो गिफ्ट था ये था कि ये जान देगा, खुद देगा। और जो तीसरा गिफ्ट था वो लबान था। लबान हैकल में जलाई जाती है, खूबसूरत एक लकड़ी होती है, खुशबूदार लकड़ी होती है जो हैकल में जलाई जाती है, जो कहानत को जाहिर करती है, काहिन जलाते हैं। और जीसस जो थे वो सरदार काहिन भी थे, प्रीस्ट थे वो। हालेलुया। ये भी उन्हें खिताब मिला कि बादशाह भी थे और उन्होंने खुद अपनी जान देनी भी थी। और फिर क्या है, वो काहिन भी थे, सरदार काहिन, सब काहिनों के सरदार। क्योंकि काहिन की ये क्वालिटी होती थी, पास्ट में हम देखते हैं शरीयत में जब कि काहिन दूसरों के लिए कुर्बानियां लेके जाते थे। हालेलुया। दूसरों के गुनाहों की बख्शिश के लिए कुर्बानियां मज़बा के ऊपर जाके गुजराते थे। लेकिन ये जो सरदार काहिन था, ये लोगों की कुर्बानियां लेके नहीं गया खुदा के पास, बल्कि अपनी जान कुर्बान करने के लिए चला गया सलीब पर। हालेलुया। खुद कुर्बान हो गया हमारे लिए, इसलिए इसे सरदार काहिन कहा जाता है, काहिनों का सरदार। के भेड़ बकरियां बकरे कुर्बान करने के लिए लोगों के लेके नहीं गया खुदा के पास, बल्कि अपना ही खुद ही बर्रा बन गया और हमारे लिए सलीब पर चला गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये है हमारा निजात दहिंदा जो खुद चला गया कि मैं अपनी जान देता हूँ। तो ये बेबी जीसस को उन्होंने 3 गिफ्ट दिए जो हमने देखे। और इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने ख्वाब में एक हदायत पाई, क्योंकि ये लोग रूह की हदायत से चल रहे थे, तो खुदा इनके साथ था। प्रेज द लॉर्ड। खुदा इनके साथ था। मेरी बहनों, यहाँ देखें कि लिखा है कि उन्होंने ख्वाब में एक हदायत पाई। क्या हदायत पाई? कि दोबारा बादशाह के पास, किंग हेरोड के पास, हेरोदिस बादशाह के पास दोबारा नहीं जाना। हालेलुया। क्योंकि किंग ने क्या बोला था कि जैसे ही तुम्हें पता चले बच्चा पैदा हो गया है, कहाँ है वो, तो मुझे आके खबर दो ताकि मैं भी जाकर उसे सिजदा करूं। बट खुदा के रूह ने उन्हें गाइड किया कि वहां नहीं दोबारा जाना, वहां खतरा है बच्चे के लिए। तो वो दूसरी राह से अपने मुल्कों को वापस लौट गए। यूं वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे और उन्होंने वो प्लान जो उनके पास था, जो खुदा की रहनुमाई में वो चलते आ रहे थे, उन्होंने वो पूरा किया, गिफ्ट्स पेश किए। और हम देखते हैं कि फिर उनको हदायत की गई कि अब दूसरे रास्ते से जाना है। यीशु को बचाने के लिए खुदा ने पहले ही प्लान तैयार कर रखा था। हालेलुया। बचाने का प्लान पहले होता है। वो जिसको दुनिया में भेजते हैं उसके पास प्लान भी होता है कि इस बच्चे को या इस बंदे को मैंने बचाना कैसे है। अगर वो आजमाइश में भेजता है या आजमाने के लिए हमें रखता है, तो बचाने की भी राह रखता है। सो जो सीखने की बात इसमें ये है कि शुरू में सितारे ने गाइड किया। हालेलुया। सितारे ने राह दिखाई। आज यीशु राह है हमारे लिए। आज यीशु राह दिखाता है। वो क्या कहता है? राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, मेरे बगैर कोई बाप के पास जा नहीं सकता। हालेलुया। सो सितारे ने जीसस की राह दिखाई मजूसियों को। आज जीसस हमें बताता है कि रास्ता ही मैं हूँ तुम्हारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। वही रास्ता है जो खुदा के पास हमें पहुंचाता है, जिसमें से होके हम बाप के पास जाएंगे। जिसका ईमान यीशु के कफारे पर नहीं है, वो खुद बाप को देख नहीं सकता, बाप के पास जा नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद का शुक्र हो कि मुझे जो खुदा ने एक और बात बताई, वो ये भी है कि जो कलाम है मेरी बहनों, कलाम भी आज हमारे लिए रोशनी है। जीसस के कैरेक्टर को समझने के लिए, उसके कफारे के प्लान को समझने के लिए, क्योंकि ये तो आज से 2000 साल पहले सब कुछ हुआ। लेकिन मैं और आप इस कफारे के प्लान को कैसे समझ सकते हैं, हम कैसे रास्ते तक जा सकते हैं? वो रास्ता कलाम है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। इस कलाम के रास्ते से होके हम जीसस को पाते हैं। जीसस की फिर सारी टीचिंग को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि यस, इसने कफारा दिया हमारे लिए। हमें फिर वो सारे कफारे का प्लान समझ आता है और फिर हम देख लेते हैं कलाम में से होके कि राह, हक और जिंदगी तो जीसस ही है। जीसस इज द ओनली वे टू गॉड। हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से मैंने खुद बहुत बरकत पाई है और मेरा ईमान है आप सब ने भी आज के कलाम के वसीला से बरकत पाई है। तो आज हमने यही सीखा है कि कलाम को पढ़ना है, कलाम को पढ़ना है। हम जीसस को पालेंगे। जीसस को जब पाएंगे तो वही राह, हक और जिंदगी है, और फिर हम बाप को भी पालेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वही रास्ता है बाप तक जाने का। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।